Dear students, today we are going to solve the questions of exercise 1.3. The first question is, prove that root 5 is irrational. Root 5 is irrational. तो root 5 को irrational proof करना है. This question is one of the important question of this chapter. So look here. We will take that let root 5 is a rational number. हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम इसको उल्टा लेके चलेंगे कि इट इज़ ए रेशनल नंबर. So we know that कि a rational number can be written in the form of a by b where b is not equal to 0. So therefore we can write that कि root 5 equal to a by b where b is not equal to 0. Also a and b are co-prime. The word co-prime is very important here. Keep in your mind. Co-prime numbers वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं. तो वी हैव टेकन दैट a एंड b आर co-prime. इट मीन्स दैट कि a एंड b only divisible by 1. Okay. After this, just take the cross multiplication. You will get that root 5b equal to a. After this, squaring both sides. Squaring both sides. By squaring both sides, we get 5b square equal to a square. It will be our equation number 1. Okay. One more step. It means that this number can be written like a square by 5. Look here, this 5 can be written here as the denominator. So it means that कि a square by 5 means a square is divisible by 5. So we will write that कि therefore a square is divisible by 5. We have seen in theorem 1.3 that 1.3 थ्योरम में हमने देखा है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, किसी भी नंबर से डिवाइड है, तो a भी उससे डिवाइड होगा. तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी 5 से डिवाइड होगा. अब so we can write a equal to 5c. Try to understand. अगर a 5 से डिवाइड होता है, देखो थोड़ा रफ में, a is divisible by 5, तो a को 5 से डिवाइड करोगे तो कोई एक नंबर आएगा. हमने मान लो कि उस नंबर को सिलेक्ट कर लिया c, तो a को 5 से डिवाइड करने पर अगर c आता है तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू 5c. तो यहाँ पे हमने ये लिखा है. ओके. तो a इक्वल टू 5c. अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. पुटिंग इन ओके. तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को हम अगर डाल दें तो वी विल गेट दैट कि 5b square equal to, at the place of a we will write 5c, so it will be 5c square. Now 5b square equal to 25c square, cancel. So b square equal to 5c square, so b square by 5 equal to c square. So this situation allow us to say that b square is divisible by 5. सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ. Therefore b square is divisible
by 5, so b is also divisible by 5। आप चाहो तो थ्योरम 1.3 ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे थ्योरम 1.3 नहीं भी लिखने से चलेगा। तो वी गॉट हेयर कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आपने ये देखा कि आपको दो चीज़ें मिली, a भी 5 से डिवाइड हो रहा, b भी 5 से डिवाइड हो रहा, और हमने लेट किया था कि a और b को प्राइम है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास। हमने माना था कि a और b को प्राइम है, मतलब उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन दोनों में 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा। तो अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दिस इज ए contradiction because we have taken a and b as co-prime। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि हमने a और b को को-प्राइम माना था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने लेट किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen due to our wrong assumption that √5 is a रेशनल नंबर। ये इसलिए हुआ क्योंकि √5 जो है उसको हमने रेशनल माना था और वो रेशनल नहीं है, तो हैंस √5 is an irrational number। So this is one of the important question. Do it at least 2 times. Okay. Now we are going for the next question. Next questions are simple. Just see that question number 2 is कि prove that 3 plus √2 is irrational। 3 plus √2, 3 plus 2√5, question number 2, 3 plus 2√5। तो we have to prove that कि 3 plus 2√5 is irrational। Okay, so we just write here कि let 3 plus 2√5 is a rational number। Therefore 3 plus 2√5 equal to a by b। बिल्कुल उसी तरह से where b is not equal to 0। इस तरह के क्वेश्चन में आप रूट वाले नंबर को एक साइड अकेला करो, बाकी जो रेशनल नंबर्स हैं उनको अगले साइड में ले चलो, नेक्स्ट साइड में। इसका मतलब है कि हम ऐसे लिखेंगे 2√5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, मतलब 3 को इधर ट्रांसफ़र किया, इस 2 को भी अब यहाँ से हटाना है, तो अभी रहने दे एक लाइन। 2√5 इक्वल टू टेक द एलसीएम b, ये हो गया a माइनस 3b। √5 इक्वल टू ये जो 2 था नीचे आ गया। अब आप जानते हो कि ये जो √5 है वो अभी प्रूफ किया हम लोगों ने इरेशनल है। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और इस साइड का नंबर √5 तो इरेशनल है, इस साइड का जो नंबर है ये पूरा रेशनल है, क्योंकि a बाई बी रेशनल होता है, 3 भी रेशनल है, माइनस करेंगे जो आउटकम आएगा वो भी रेशनल है। तो एक तरफ इरेशनल दूसरे तरफ रेशनल, ये नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन
बिकॉज रेशनल hence 3 plus 2 root 5 is इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही करना होगा। एक तरफ रेशनल को रखो, दूसरे तरफ इरेशनल को, और ये फिर लिख दो।